हाँ जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲਾਈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਲਾਈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 6 ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਲਾਈਵ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 7th ਵਾਸ योर ਪੋਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। प्रीवियस ईयर कवर करके यू नो कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਹੈ ਨਾ। 2-3 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਆਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਵੀ नो ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ 6 ਲਾਈਵ ਲਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਓਕੇ। ਔਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਕੇ ਜੀਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। और उन्होंने लाइव दे विच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे पंजाब दे अपने, ते उन्होंने क्वेश्चंस दे विच आपां आंसर्स भी करे है और उन्हों कॉन्सैप्ट भी सीखे है। तो मैं कहूँगी सिर्फ PYQ ही नहीं किते आपां, असी PYQ दे नाल जिहड़े कॉन्सैप्ट भी रिलेटेड सीगे वो भी पढ़े ने, ठीक है। सो दोज जिन्होंने वो हिस्टरी दियां लाइव जिहड़ियां है नहीं देखिया होईयां, आई सजैसट कि तुसीं एक बारी देख लो। टोटल 6 लाइव ने तुहाडियां, ओके। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਲ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ constituted by parliament consists of how many members। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ क्या पूछा जा रहा कि ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, constitutes of how many members। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ क्या जवाब आएगा। ट्राई टू आंसर, ठीक है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड सोचो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। टाइम ना वेस्ट करते हुए ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 22 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, 22 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 22 ਮੈਂਬਰਸ। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, 22 ਮੈਂਬਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 22 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, 7 ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। 15 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਫਰੋਮ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ 15 ਮੈਂਬਰਸ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾय द स्पीकर ऑफ लोक सभा, मतलब लोक सभा वाली साइड तो आते हैं, स्पीकर उन्होंने फाइनलाइजेशन करके भेजते हैं। एंड 7 इलेक्टेड बाय सेम कहानी लिखांगे आप, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। 22 मैंबर, 15 आ गए लोक सभा चो, 7 कितों आ गए राज्य सभा तो हो गए। एक चीज याद रखनी है, इस कमेटी की जी वैलीडेशन है या मैंबरस जोड़े है वो टर्म सिर्फ 1 ईयर का होंगे है, उस तो बाद दोबारा ये नवी रीकॉन्स्टिट्यूशन होंगी रहती है, ओके। बट एक कमेटी जो भी सलाह देगी, जो भी डिसीजन लेगी, जो भी फैसला लेगी वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख दिनी हाँ कि decisions made by the committee are advisory in nature। नेचर किदा दा है उन्हां दा, एडवाइजरी नेचर है, आर एडवाइजरी इन नेचर।
दे आर एडवाइजरी इन नेचर, मतलब कि ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾर्लियामेंट ने उस चीज में इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना, वो बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, सलाह के तौर पर ही दिता जाता है जो भी फैसला लिया गया है। ठीक है। अच्छा जो तुहानू पेपर पूछ लवे कि चेयरमैन इस कमेटी का कौन अपॉइंट करता है, तो आप गलती करके कई बार ऑप्शन मार्क कर दें प्रेजिडेंट, बट नहीं, ये ऑप्शन मार्क होएगा स्पीकर ऑफ लोक सभा। मैं लिख भी देनी कि चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन of committee is appointed by speaker of lok sabha। ठीक है, appointed by the speaker of lok sabha। lok sabha ਦੇ स्पीकर ਕੋਲ पावर है इस कमेटी ਦੇ चेयरमैन ਨੂੰ नॉमिनेट करने ਦੀ, अपॉइंट करने ਦੀ। क्लियर है? ठीक है। सो ये ਸੀਗਾ अपना पहला क्वेश्चन ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਾ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं आप अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पहली चीज है इतने हाउ नहीं आएगा, क्या आएगा हु। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोलिया गया है तो। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेट्स द इशू रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया दे वाइस प्रेसिडेंट दे इलेक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई भी जो भी इशू बनता है उस चीज ਨੂੰ कौन इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, उस चीज ਨੂੰ कौन इन्वेस्टिगेट करता है। इशूज ਨੂੰ कौन इन्वेस्टिगेट करता है, ये नहीं पूछ रहे कि कौन करवांदा है, ਤਾਂ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ क्या आएगा ਇਹਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ सी ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, दैट इज ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਂਦਾ ਹੈ then that issue, उस इशू ਨੂੰ कौन हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। ठीक है, एक चीज सानू क्लियर हो गई। ठीक है, हुण देखो ਆਪਾਂ वाइस प्रेसिडेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। सो गल हो रही है ਇੱਥੇ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ਦੀ। वाइस प्रेसिडेंट ਸਾਡੀ कंट्री ਦਾ सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। वाइस प्रेसिडेंट साडी कंट्री ਦਾ क्या है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री है, दूजे नंबर ਦੇ ਉੱਪਰ। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ਦੇ ਵਿੱਚ वाइस प्रेसिडेंट ही आंदा है दूजे नंबर ਦੇ ਉੱਪਰ, पहले नंबर ਦੇ ਉੱਪਰ प्रेसिडेंट है। ठीक है, मैं लिख दिंदी हां आफ्टर द प्रेसिडेंट, तो सब तो ऊपर आंदे है साडे प्रेसिडेंट और उस तो बाद दूसरे नंबर ते वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। एक चीज क्लियर हो गई सानू। हुण होर वाइस प्रेसिडेंट बारे सानू क्या चीज़ां असीं जाननियां है, एक चीज तो क्या याद करनी है आपां कि देखो साडा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, क्या नंबर है आर्टिकल का, आर्टिकल 63। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 क्या बोलता है सानू, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पोस्ट क्रिएट करी हुई है कि एक साडी कंट्री का क्या होना चाहिए है, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए है, इट इज नेसेसरी। ओके, हुण वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किद्दां हुंदे, इलैक्शन किद्दां हुंदी है इन्हां दी इलैक्शन हुंदी है इनडायरैक्ट इलैक्शन। असीं तां वोट नहीं पांदे, नॉर्मल लोग तां वोट नहीं पांदे, तां इलैक्शन क्या हुंदी है, इनडायरैक्टली। इलैक्शन किहदे थ्रू हुंदी है, एक बनाया जाता है इलैक्टोरल कॉलेज। क्या बनाया जाता है, इलैक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जो क्या करता है, ये इलैक्शंस नूं कंडक्ट करांदा है। ठीक है, इलैक्टोरल कॉलेज जो इन इलैक्शंस नूं कंडक्ट करवाएगा। सो हुण इलैक्शंस इनडायरेक्टली करवांदा कौन है, इलैक्टोरल कॉलेज। ठीक है, हुण वो इलैक्टोरल कॉलेज तुहाडे लोक सभा ते राज्य सभा दे विचों ही चुने हुए
ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਓਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਥ 100 ਕੌਣ ਚੁਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, दैट इज ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ठीक है, रेजिग्नेशन भी जो देनी होवे, जो वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन भी किनू देनी है, रेजिग्नेशन भी किनू देनी है, प्रेसिडेंट नू ही दिती जाएगी। ओथ और रेजिग्नेशन दोनों ही दिती जाएगी। टर्म की गल कर लो कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना हुंदा है, 5 साल का टाइम पीरियड हुंदा है, 5 ईयर्स, और री इलेक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो दोबारा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा का कॉन्सेप्ट साडे कोल नहीं है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दोबारा इलेक्ट करे जा सकते हैं। ओके, एक होर चीज, क्या चीज है जो साडे वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होंगे है, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा दे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने उपराष्ट्रपति। ठीक है, मतलब कि जो भी राष्ट्रपति होएगा जो भी उपराष्ट्रपति होएगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, राज्यसभा दे चेयरमैन का भी काम करेंगे। ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन कोई दस सकता है कि क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए? क्या क्वालिफिकेशन है कि पहली क्वालिफिकेशन तो हो गई, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी, मिनिमम एज सानू कितनी चाहिए है, 35 ईयर्स। तीसरी क्या चाहिए है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा दे मेंबर बनने दे काबिल होने चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और एक और चीज बोल देने, क्या चीज बोल देने कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सरकार के अंदर, चाहे वो सेंटर की सरकार है, चाहे वो स्टेट की सरकार है, या कोई भी लोकल बॉडी सरकारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते होने चाहिए है। ये बेसिक ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, थोड़े ਜਿਹੇ चीज़ा वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक के नाल रिलेटेड सी। ठीक है, क्लियर है? सो आई ट्राइड, मैं कोशिश करी है कि आप इस आंसर नाल थोड़ा थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के नाल जो मिलता जुलता टॉपिक है जां होर क्वेश्चन जिहड़े पूछे जा सकते हैं आप वो भी कवर कर लईए। ओके, 2 मिनट वेट करते हैं, मतलब एक पॉज करने हैं, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करांगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सौखा क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन के आधार के उपर, धर्म के आधार के उपर किहड़े आर्टिकल दे विच डिस्क्रिमिनेशन, वितकरा, भेदभाव रोकया होया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड मैं उम्मीद करती हाँ कि तुहानू सारिआं नू इहदा आंसर जिहड़ा हैगा आ वो पता होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरैक्ट क्वेश्चन है। और ये तुहानू कितनी बार बोलिया जांदा क्लास के उपर, क्लास दे विच कि जिहड़े फंडामेंटल राइट्स है वो तो तुसीं अपनी टिप्स ते ही करने हैं, दे शुड बी ऑन योर टिप्स। कहने हैं ना आप, मैं कितनी बार बोलती हूँ क्लास तुहानू ये चीज़ कि फंडामेंटल राइट्स तुहानू भुलना ही नहीं चाहिए कि केड़ा आर्टिकल क्या फंडामेंटल राइट अपने नाल लेके आंदा है। फटाफट देखो, क्या आंसर मार्क करोगे तुसीं इहदा?
ए बी सी डी 9 करोगे, 10 करोगे, 12 करोगे या 15 करोगे? अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ क्या है, फंडामेंटल राइट्स ਦਾ टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स ਦੇ ਵਿੱਚ 9 और 10 ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ 9 और 10 ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 9 ਐਂਡ 10 ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ 2 ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैगा, द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है? सिटीजनशिप है। और ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਾर्ट 3 ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ क्या? फंडामेंटल राइट्स। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 तक, 12 to 35। तो 9 और 10 तो है ही नहीं। आर्टिकल नंबर 12 साडा किस चीज ना डील करता है? ये डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यही है ना आर्टिकल 12 क्या कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट दी डेफिनेशन की। तब बच्चा ही की इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, that is article 15। article 15 ਸਾਨੂੰ क्या कहता है? what is the entire, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕੱਲਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या बोलता है आर्टिकल 15? क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on the grounds of, ਕਿਹੜੇ grounds? ਸੋਚੋ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ prohibition of discrimination ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? race, caste, gender, religion and place of birth। ये सारी चीज़ें बोलता है ना आर्टिकल 15 कि किसी भी चीज के आधार के ऊपर तुसी वितकरा नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। दैट इज योर आर्टिकल 15 बेसिकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं आप। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? ये सब जवाब भी सौखा है। लास्ट कितनी बार बोला जाता है कि देखो ये वाला एक्ट तो भुलना ही नहीं है, ये वाला एक्ट तो तुहानू कल्ली कल्ली चीज इस एक्ट की याद होनी चाहिए है। बस उसी एक्ट, वो एक्ट किहड़े साल च आया सी ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, व्हाट वाज द ईयर ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ बेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ। देखो क्या आंसर मार्क करोगे? ए बी सी डी। What will be the answer? What will be the right answer? क्या मार्क कर देंगे आप? Think about it. हाँ जी, चलो आंसर क्या मार्क करोगे? आई होप तुसी सारे ने आंसर सी ही सोचा होएगा और सी ही मार्क करया होएगा, बिकॉज राइट आंसर इज सी। हुण देखो पहली चीज तो गल किस चीज की करते पे है कि भाषा के आधार पर किहड़े साल दे विच इंडियन स्टेट नू रीऑर्गेनाइज करया सी। तां हुण मैं हिंट चकना है इत्थों, इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज। सानू पता है साडे कोल क्या आया है, एक्ट आया सी क्या? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ ਸੀ? 1956 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ क्या ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ? 1956 ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਕਿ क्या ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ क्या है। देखो
ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟ ਏ, ਪਾਰਟ ਬੀ, ਪਾਰਟ ਸੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਵੀ ਨਿਊ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੈਟਅਪ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ मतलब ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ बेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ डिमांड उठती है फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंगुइस्टिक स्टेट्स। बहुत सारे कमीशनस बिठाए जाते हैं जिन्होंने ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸ.ਕੇ. ਧਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ क्या ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। कमीशन का नाम रखती है लिंगुइस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार। इस करके इनू आपां नॉर्मली किस नाम नाल जान लैंदे आ, धार कमीशन के नाम नाल जानते हैं। हुण इस कमीशन ने स्टडी किया सारा कुछ, स्टडी करने तो बाद ये कमीशन एक निष्कर्ष ते पहुंचदा आ। क्या निष्कर्ष पहुंचदा है उहदा कि नहीं, असी लैंग्वेज के आधार के उपर नहीं क्रिएट कर सकते स्टेट्स। ठीक है, कि असी लैंग्वेज के आधार के उपर स्टेट्स नू क्रिएट नहीं कर सकते, तो रिजेक्ट कर दिता। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ क्या ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ सो इस तो बाद गवर्नमेंट क्या करती है, फिर लिंगुइस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बिठा देती है। लिंगुइस्टिक प्रोविंसेस के लिए कमेटी बिठा देती है, जिस कमेटी को ਅਸੀਂ क्या बोलते हैं, जेवीपी कमेटी। ਹੁਣ ਇਹ जेवीपी कमेटी ਜਿਹੜੀ है, ठीक है, जेवीपी कमेटी जो है, जेवीपी कमेटी ਦੇ यू विल टेल मी कि 3 ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ जेवीपी ਪਈ ਹੈ। ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ जेवीपी नाम ਪਿਆ है? क्यों बोलिया ਅਸੀਂ जेवीपी? कौन कौन सी? जे तो जवाहरलाल नेहरू, वी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड पी तो पट्टाभी सीता रमया। कौन हो गए? पट्टाभी सीता रमया। ये 3 मेंबर्स, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीता रमया, इन्हां तिन्नां ने, ये 3 जने इस कमेटी के मैंबर सीगे। इस करके क्या बन गई है, जेवीपी कमेटी। और इन्होंने भी स्टडी किया पूरे के पूरे, इस जो भी रिक्वायरमेंट या जो भी अंदोलन या जो भी डिमांड चल रही थी स्टडी करिया। उन्होंने भी यही नतीजा निकालिया कि सानू लैंग्वेज के आधार के उपर स्टेट्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। पर हले भी डिमांड जी है वो शांत नहीं हुई है। फिर सानू पता है कि प्रोटेस्ट, भुख हड़ताल एंड इन्हां सारिया चीज़ों के चलते, प्रोटेस्ट, भुख हड़ताल, इन सारिया चीज़ों के चलते फाइनली 1953 ईयर आता है, और उस वक्त आंध्रा जी है वो क्रिएट करनी पैंती है ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो आंध्रा क्या सी साडी फर्स्ट स्टेट
to be created on linguistic basis, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ on linguistic basis पहली स्टेट क्रिएट हो गई। ठीक है, भाषा के आधार के उपर डिमांड्स दे करके, डिमांड्स हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट दे करके आंध्रा नू क्रिएट करना पैंदा है 1953 दे विच। हुण जदों आंध्रा नू 1953 दे विच क्रिएट कर दिता ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या होएगा कि डिमांड शांत हो गई। फिर बाकी साडे देश के बाकी हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ डिमांड क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ डिमांड करते हैं कि अगर तुसी आंध्रा क्रिएट कर ਦਿੱਤੀ है तो सानू भी सेम चीज़ ਜਿਹੜੀ ट्रीटमेंट चाहिए है। सो फिर दोबारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगला स्टैप आता है, गवर्नमेंट ਨੂੰ एक होर कमीशन अपॉइंट करना पैंदा है। एंड यू गाइज विल टेल मी कि ਕਿਹੜਾ कमीशन है। कॉमनली ਆਪਾਂ उस कमीशन ਨੂੰ किस नाम ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ मैं एक साल लिखा है 1953, याद रखना है। पहली स्टेट केड़ी क्रिएट हुई, आंध्रा, केड़े साल क्रिएट हुई 1953। हुण तुसीं मैनूं दसो 1953 तो तुहानूं कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन दे नाल याद आंदा रिलेट करके, कुछ तो याद आ रहा। मेरे माइंड तक क्लिक कर गया जो मैं 1953 लिखा, उसी टाइम एक चीज़ क्लिक करी सी मेरे माइंड, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक के नाल रिलेट कर लिया। ठीक है, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो पर कोई लिमिटेशन थोड़े ना कि असीं उहदे नाल हिस्ट्री रिलेट नहीं पढ़ सकते, लिंक नहीं कर सकते, या हिस्ट्री याद नहीं आ सकती दिमाग दे विच। 1953 तो मैनूं याद आते ने वाई.डी. शर्मा। ठीक है, वाई.डी. शर्मा कौन से जिन्होंने अपने पंजाब वाली रोपड़ दे विच जिहड़ी तुहाडी हड़प्पा सिविलाइजेशन दी, इंडस वैली सिविलाइजेशन दी साइट है, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕੇਵੇਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਕੇਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। क्या कर रहे हैं आप कि अच्छा हुण डिमांड होर वधदी है, डिमांड होर वधदी है तो कहानी कित्थे पहुंच जाती है कि इस तो बाद फिर एक कमीशन बिठाना पैंदा है। उस कमीशन का नाम सीगा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिहड़ा है 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ। ठीक है, चेयरमैन फजल अली होंगे है, इसी करके इस कमीशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ आम तौर पर ਕਿਹੜੇ नाम ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, फजल अली कमीशन ਦੇ नाम ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। इसी नाम ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ, फजल अली ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਹੁਣ अगली स्टोरी, फजल अली चेयरमैन है, मैं दसो 3 मैंबर सी और पेपर तुहानू पुछदा है कि 3 मैंबर्स किहड़े-किहड़े सीगे। ठीक है, याद रखना है फजल अली कमीशन दे भी या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन दे भी 3 मैंबर है। 3 मैंबर कौन-कौन है, एक मैंबर हो गए तुहाडे फजल अली, दूसरे एच.एन. कुंदरू, दूसरे मैंबर कौन सी, एच.एन. कुंदरू, और तीसरे मैंबर सी के.एम. पानीकर। याद रखना है, नाम नहीं भूलने मैंबर से। 3 मैंबर्स 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट कर दी सबमिट, और इस रिपोर्ट के आधार के उपर या जो भी इस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दित्तियां, उन्हां रिकमेंडेशंस के आधार के उपर तुहाडे कोल फिर आंदा है 2 चीज़ां। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इहदे आधार पर 2 चीज़ां आईयां। क्या क्या आया, एक आया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, और दूसरी एक होर चीज़ हुई सी, क्या भुलना नहीं है आपां, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या होया सी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वीं संशोधन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इहदे आधार दे उपर ही, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये दोनों किहदियां रिकमेंडेशन दे उपर होईयां ने, फजल अली कमीशन ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आने तो बाद ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ठीक है, होर इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होया सी, होर क्या होया सी इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ भी करांगे। ठीक है, वो भी करांगे कि होर क्या होया सी इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ, कुछ नहीं छड्डना आपां। फिर क्या होया कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या होया, कुछ चीज़ अबॉलिश हुई। क्या अबॉलिश हुई, अबॉलिश्ड क्या हुई, पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ क्या कर ਦਿੱਤੀਆਂ, खत्म कर ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिप्लेस ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, रिप्लेस कर ਦਿੱਤਾ 14 स्टेट्स
ਐਂਡ 6 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਇਹ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1966 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਟੇਟਸ ਤੇ 6 ਯੂਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ? 14 ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ 6 ਯੂਟੀਜ਼ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ। On 1 November 1956 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ? 14 states and 6 union territories। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖੁਦ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, खुद इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो कि who said that इंडिया ਜਿਹੜੀ है indestructible union है destructible states की। किने बोली सी ये लाइन कि इंडिया indestructible union है of destructible states? who said this line? किने बोली सी ये लाइन कि इंडिया is indestructible union of destructible states? ये लाइन बोली सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने लाइन बोली है कि इंडिया, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया की यूनिटी परमानेंट है। इस लाइन का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ इंडिया इज परमानेंट। ठीक है, यूनिटी ऑफ इंडिया इज परमानेंट एंड इसका मतलब है नो स्टेट कैन secede from the union। No state can secede from the union। सिंपल कहानी, इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब जो यूनियन है उन्होंने तुसी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट स्टेट्स जड़ियां है जिन्हां तो मिलके इस यूनियन बनी हुई है उन्हां स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो दो स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल बट नॉट द यूनियन। ये चीज दी जी लाइन तुहानू बोली गई सी, दैट लाइन वाज गिवन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, क्लियर है? एंड इस चीज दे विच सिंपल देखो क्या आप ऐड कर सकते हैं कि एक चीज कि ये जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप चीज़ों को, ये जड़ियां चीज़ों को असीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि इत्थे डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। ये आप किहड़े आर्टिकल की गल करते पे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की? वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 3। ठीक है, किस आर्टिकल की गल कर रहे हैं? तीसरा। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है कि पार्लियामेंट को पावर है ना, चेंज कर सकती है बाउंड्रीज, ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज एंड नेम चेंज कर सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती है। तो इत्थे यही मतलब होया कि आर्टिकल 3 का क्या मतलब है कि B.R. अम्बेडकर ने क्या बोलिया कि स्टेट्स का नेम, बाउंड्री एटसेक्ट्रा चेंज हो सकते हैं, ये मतलब है डिस्ट्रक्टिबल का। बट यूनियन जी है वो हमेशा सेम रहेगी, इंडिया की यूनिटी मेंटेन रहेगी और कोई भी स्टेट सिसीड मतलब यूनियन तो लग नहीं हो सकती कि अज कोई स्टेट बोले कि मैं हुण इंडिया का पार्ट नहीं है, मैं लग तो है, वो कोई भी स्टेट नू राइट जड़ा है नहीं दिता गया। ठीक है, किसी भी स्टेट नू इस चीज़ का राइट नहीं दिया गया है। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन जड़े है वो क्लीयर होए होणगे। ठीक है, कोई डाउट वगैरह होया तो कॉमेंट सैक्शन दे विच काइंडली कॉमेंट कर देना, उत्थों अगलियां चीज़ां फिर आपां सेम क्वेश्चन तो अगे कैरी फॉरवर्ड कर लांगे। अज दी क्लास दे लई जो भी आपां पढ़िया, आई नो आपां 5 ही क्वेश्चंस करे ने, बट आई होप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो तुहानू समझ आए हो, नहीं समझ आए है या नहीं समझ आए हैं, काइंडली जो कॉमेंट सैक्शन है मैनूं उत्थे दस दिओ। जे किसी नूं कोई डाउट या कन्फ्यूजन भी रह गई होवे वो भी उत्थों दस दिओ। मैं अगली क्लास दे विच अगले लाइव दे विच कोशिश करूंगी कि तुहाडे डाउट्स वगैरह सारे दे सारे उत्थे क्लीयर कर देवां। ठीक है, चलो दैट्स इट। बाकी मैं मिलदी हां तुहानू कल दी क्लास दे विच नैक्सट लाइव दे विच, एंड टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज कर लेना जो भी चीज़ां आपां कवर करनियां है। ठीक है, एंड पिछले क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेना। एंड अगेन आई एम सेइंग जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी व्यूअर ने अपने पिछले हिस्ट्री वाले लाइव्स नहीं लगाए हुए हैं, देखो 6 लाइव्स लग चुके हैं, 7वां ऑलरेडी पॉलिटी का है, 8th तो ये वीडियो हो जाती है, तो टोटल 8 क्लासेस प्रीवियस ईयर बेस्ड हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है साडे यूट्यूब के ऊपर,
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਕੇ ਜੀਐਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।